Yes, sir. Hello. Good morning, students. Then yesterday we were doing the exercise questions, NCERT exercise questions of lesson 12, electricity. That today we'll continue further to that. Next question, question number 10. Up to question number 9 we have completed. Now we'll start from the question number 10. I'll read the statement of question number 10. The statement is, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220 volt line? Now students, so question, the statement is very simple, and the answer is also, the solution of this question is also very simple. So what are the givens, the data in this? They have given the value of I. I is given as a 5 ampere and V is given as a 220 volt. And the resistance, the value of the resistor, they have given the 760 ohm. Is it clear, students? In parallel. Now, what we have to do in this type of the questions, we have to calculate the question, what he is asking. Now, calculate the how many 176 ohm resistors they are connected in parallel, so that to obtain, so that they can be operated at 5 ampere and 220 volt. Now, student, the answer of this type of the question is how to solve this type of question. Now, students, now given here it's a I, value of I is given, V is given. Now, according to the Ohm's law, V is equal to IR. V kitna hai, student? 220. I ki value 5 and R. Now, R will be the 220 divided by 5, and it will be the R will be the 44 ohm. Is it clear, students? By applying the Ohm's law, I have done the, that is a, I have calculated the value of R, that is the 44 ohm. Now, student, now how to calculate the number of resistance, the total number of resistance. Now, total number of resistance should be, now students, now it is given as a 176. Now you will divide with the 44 and you will get the 4 ohm. Means there are four resistors. Total number of resistance should be means 176 ohm K. You are required the, how many resistance you are required? 4. चेक करिए स्टूडेंट, अगर 176 ओम के 4 रेजिस्टेंस हैं और अगर पैरेलल में वो कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा? 176 प्लस 176 प्लस 176 प्लस 176, एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 176, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बाई 176, और आर जो आपका आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 176 बाई 4, इट विल बी इज इक्वल टू 44 ओम. सो यही क्वेश्चन था स्टूडेंट हमारा. यहाँ पे भी 44 है, इसका मतलब कितने चाहिए 176 के? वी आर रिक्वायर्ड विद द 4 रेजिस्टेंस रजिस्टर्स. क्लियर है? दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 of your NCERT, the solution of question number 10 of the NCERT. Please note down. Note down, student. Is it clear, students? Now, so further we'll now go for question number 11 of your NCERT, page number 221. Now, student, I'll read the statement of question number 11. The question number 11, the statement of question number 11 is the show how you would connect the 3 resistors, each of a resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm. Clear, students? So question is very simple कि हमको कितना है कि
जो मैं 3 रेजिस्टेंस हैं 6 ओम, उसका ईच की वैल्यू कितनी है 6 ओम, उसको मैं कैसे कनेक्ट करूं कि मेरे पास जो उनका रिजल्टेंट है वो 9 ओम और 4 ओम होना चाहिए। very important question, students. So many times this question has been asked in your board exam. Clear है students? देखिए क्या क्वेश्चन क्या सिंपल है, बट आपको करना कैसे है स्टूडेंट्स। नाउ 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, सो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट भी दिया हुआ स्टूडेंट 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। बस ये बताना है कि सर्किट में वो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होने चाहिए, दिस इज ओनली द क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अभी क्या है, पहले वाले केस में क्या है कि उसके केस में जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट, अगर मैं देखिए क्या मेरे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर एक और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों को मैं ऐसे कंबाइन करता हूं और एक रेजिस्टेंस 6 ओम का मैं तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगाता हूं, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। क्लियर है स्टूडेंट? अभी देखिए अगर ये दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/6 प्लस 1/6, इट विल बी 6 एलसीएम 1 + 1 2 2/6। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/2 एंड इट विल बी द 3 ओम। अभी स्टूडेंट्स क्या है कि इन सभी दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कंबाइन किया, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इट हैज कम 3 ओम। तो मेरे पास इन दोनों की जगह अब एक रेजिस्टेंस बन गया, कितना बन गया ये 3 ओम। ठीक है, और आगे इसके आगे मैंने क्या है तीसरा रेजिस्टेंस क्या था, वो भी 6 ओम का मैंने आगे कनेक्ट किया हुआ है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माय आंसर विल बी द 9 ओम। सो आई हैव ऑब्टेन्ड द फर्स्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन दोबारा से मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, we have given with the 3 resistance of 6 ohm each. How to be connected so that we can obtain the resistance 9 ohm और 4 ohm आना चाहिए। देखो क्या किया मैंने, एक 6 ohm और दूसरा 6 ohm को मैंने पैरेलल में किया, और पैरेलल में दोनों को कनेक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया मेरे पास 3 ohm बन गया इनका, और 6 साथ में मैंने फिर सीरीज में हो गए तो टोटल 9 ohm आ गया। क्लियर है? First part is over. Now we'll see the how this answer of the second part उसका कैसे कॉम्बिनेशन होगा, ताकि मेरा जो आंसर है, जो सेकंड आंसर है 4 ओम है, that also can be obtained. How this they can be the answer of my another, that is a second it can be obtained. अभी स्टूडेंट देखिए मैं क्या करता हूं, मान लो ये एक रेजिस्टेंस था 6 ओम है, दूसरा भी एक काम करता हूं मैं, 6 ओम का ये रेजिस्टेंस है, दोनों को मैं सीरीज में ले लेता हूं और एक को इनको पैरेलल में ले लेता हूं। देखिए क्या ऐसे हो जाएगा, इससे 6 और 6 कितना बन जाएगा, ये जो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, ये 12 ओम हो जाएगा। और अभी देखिए ये जो 12 ओम है, अभी ये तो क्या बन गया 12 बन गया, और ये दूसरा क्या था नीचे 6 है। अभी देखिए क्या है, ये 12 है और ये 6 है, ये दोनों अब क्या हो गए पैरेलल में हो गए। अगर ये पैरेलल में है तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/12 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया, तो 1 + 2 ना सॉरी 12 तो एलसीएम आएगा स्टूडेंट, यस एलसीएम विल बी 12, 12 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो इट इज अ 3/12। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा, यहाँ पे क्या था 1/r, तो r विल बी द 12/3 and it will be the 4 ohm. So this is my required answer of second part कि 4 ohm, first part मैंने किया था 9 ohm होना चाहिए। So student हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 है एनसीईआरटी का, द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एनसीईआरटी, सो इसको भी हमने सॉल्व किया है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट ओनली लिटिल बिट दैट ट्रिक is required, how to connect the 6 ohm each resistance in the either in which type of the combinations, so that I should get in the first case 9 ohm and the second case 4 ohm। पहला मैंने आपको बता दिया फर्स्ट केस, सेकंड भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया कि देखो दो रेजिस्टेंस 6 ओम के सीरीज में ले लिया मैंने, टोटल बन जाएगा 12, और तीसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में है, 12 और 6 पैरेलल में है स्टूडेंट। फार्मूला लगाया मैंने 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r2. Already you know the formula, when the resistances they are connected in series, r is equal to r1 plus r2,
When connected in parallel, 1/R1 plus 1/R2, यहाँ पे पैरेलल में है तो इससे मेरा क्या आ गया आंसर 4 ओम। प्लीज नोट डाउन, नोट करिए। देन फर्दर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 का आप आंसर नोट करिए। द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज नोट डाउन। Have you noted down, students? Now, question number 12. Question number 12, students. क्वेश्चन नंबर 12 की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, प्लीज नोट करिएगा। और पहले देखिए क्या 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 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। व्हाट डाटा इज गिवन और हमको क्या चीज उसमें निकालना है। देखिए क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज ऑन 220 वोल्ट। वी कितना दिया हुआ स्टूडेंट, पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं 220 वोल्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन रेटेड 10 वाट ईच। पीई कितनी दे दी है, 10 वाट, ठीक है। देन हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum available current is 5 एम्पियर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं क्योंकि इसका भी यूज होगा कि 5 एम्पियर करंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए क्या है कि क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले देखिए क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको 3 फार्मूले बताए थे, 3 फार्मूले पावर के। पहला फार्मूला पावर का P इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख भी देता हूं स्टूडेंट, पहले मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू V इंटू आई। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और थर्ड मैंने बताया था P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फार्मूले थे स्टूडेंट। अभी देखिए क्या तीनों फार्मूलों का, ऑल द 3 फार्मूलाज दे विल बी यूटिलाइज्ड एनी हाउ, किसी ना किसी रूप में उनका यूज होगा ही होगा। इसलिए मैंने आपको जो है सारे फार्मूले लिखवाए भी थे और मैंने कहा भी था कि सारे फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा, किसी ना किसी रूप में ये सारे फार्मूले कहीं पे भी यूज हो सकते हैं फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट करना क्या है, यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। देखिए 3 चीजें हैं, P है, R है, V है। अब हमारे को क्या दिया, V और P की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर, V की जगह मैंने 220 रख दिया है, और डिवाइडेड बाई R। इज इट क्लियर स्टूडेंट, क्लियर है। देखिए 10 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 2, V की जगह 220 है, 220 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई R मैंने लिख दिया। जैसे स्टूडेंट आप इसको करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन, सो क्या आ जाएगा हमारा R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 10। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद में योर वैल्यू विल बी 4840 ओम। एनी डाउट फॉर ऑब्टेनिंग द R वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू ऑब्टेन करने में देयर शुड नॉट बी एनी डाउट स्टूडेंट्स, कि सिंपली फार्मूला लगाया V स्क्वायर बाई R, वैल्यू पुट कर दी और R की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टार्टिंग में हमारे को क्या दिया हुआ था, अब हम इसको यूज करेंगे कि जो 5 एम्पियर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और V की वैल्यू कितनी दी है, सेकंड केस में भी 220 दी है। यहां से R की वैल्यू कितनी आएगी, ओम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूं, V इज इक्वल टू आई आर, अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर यूज करता हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, V कितना दिया है 220 और उसके बाद वोल्ट, और I की वैल्यू दी है 5 एम्पियर। तो मेरी R की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 220 डिवाइडेड बाय 5, सो माय वैल्यू विल बी 44, दैट इज 44 ओम आ जाएगा, 44 ओम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अगर मैं 5 करंट लेता हूं 5 एम्पियर, 220 वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं, तो R की वैल्यू उस केस में मेरे पास आ रही है, इट इज 44 ओम। नाउ स्टूडेंट, हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड
सेम जैसे पहला क्वेश्चन किया था जो 176 से हमने 44 निकाला था, अल्टीमेटली इसमें भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हमको कितना वैल्यू कैसे वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमारे पास कितना था 4840 निकाला था डिवाइडेड बाय 44 एंड आंसर विल बी 110 बल्ब sorry, the 110 bulbs are to be connected. 100 answer will be the 110 bulbs can be connected in parallel in the circuit. Means 110 बल्ब को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो नेट रिजल्ट जो आएगा वो 44 ओम आएगा। कारण क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं उस समय टोटल रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है और जब सीरीज में होंगे टोटल रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाता है। एंड हमको मालूम करना है जो है वैल्यू मालूम करना है कि जो टोटल रेजिस्टेंस 44 आना चाहिए और 44 के लिए जो 4840 वाले जो रेजिस्टेंस हैं वो 110 में लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 44 ओम आएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज the solutions of your question number 12. Solution of your question number 12. Please note down. Okay, students. Now we'll switch on to the question number 13. Please. ये question number 12 था. Note करिएगा आप. Then question number 13 मैं करा रहा हूँ. Please note down. Fast. Question number 13. Hurry up. Have you noted down, students? Now, question number 13. Hello. Yes, students. Question number 13. मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है a hot plate of an electric oven connected to 220 volt line has two resistance of the coil A and B each of 24 ohm resistance। तो R की वैल्यू कितनी दी हुई है 24 ओम। क्लियर है? ठीक है, दो बता रहे हैं और भी जो दूसरा भी क्या होगा वो भी 24 ओम। अगर सेकंड केस में हम लेंगे ये वाली वैल्यू जब वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। नाउ क्या कह रहा है आगे 24 ओम रेजिस्टेंस व्हिच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज एंड पैरेलल व्हाट आर द करंट इन द थ्री केसेस। तीन केस बता रहा है स्टूडेंट। देखो पहले वाला केस क्या हो जाएगा then current when each coil is used separately। so current की वैल्यू निकालेंगे I की वैल्यू when each, मैं लिख रहा हूं तीनों केस, when each coil is used separately, when each coil is used separately। ठीक है, separately। ठीक है, तो पहले वाला केस है स्टूडेंट। सेकंड केस क्या होगा I की वैल्यू निकालेंगे जब पैरेलल में। ठीक है, सो हमने इसके तीन आंसर आएंगे स्टूडेंट, हम इसके तीन आंसर निकालेंगे। करंट की वैल्यू तीन निकालनी है स्टूडेंट। मैंने पहला क्या की व्हेन ईच कॉइल इज कनेक्टेड। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड है जब रेजिस्टेंस सीरीज में और जब पैरेलल में, तो क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? अभी देखते हैं कि उसको करना कैसे है। क्लियर है? इसको मैं लिखा रहने देता हूं यहाँ पे आर की वैल्यू, क्योंकि यूज होगी ना ये वाली आर की वैल्यू में मेरे पास। तो मेरे को करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जो देखिए क्या है कि वी की वैल्यू दी हुई है जो 220 वोल्ट। क्लियर है? अभी ओम्सला के हिसाब से हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ये फार्मूले जो है ये तो आपको हमेशा के हमेशा कोई भी ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स जैसे जितने भी हैं सब में मैक्सिमम में ओम्सला तो यूज हो ही रहा है। क्योंकि कारण कहीं V दिया होगा, R दिया हुआ, I निकालना है, और कहीं पे V और I दिया तो R, और कहीं पे मान लो V और I R निकालना है, और कहीं पे अगर I और R दिया आपको V भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है।
वो डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या चीज उससे ऑब्टेन करनी है। नाउ स्टूडेंट, अगर हमारे पास v दिया है, फार्मूला है सिंपल 220 और डिवाइड इक्वल टू i की वैल्यू मेरे को निकालनी है, r 24 है, तो कितना आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 24। जैसे स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो माय वैल्यू विल बी 9.17 एम्पियर will be my value will be I। तो पहले वाला आंसर है हमारा I is equal to 9.17 एम्पियर। तो अभी तो एक ही आंसर आया स्टूडेंट, मेरे को तो 3 आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस का और पैरेलल का कैसे होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड पार्ट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी देखिए क्या स्टूडेंट्स, 2 रेजिस्टेंस हैं। अभी रेजिस्टेंस अगर ये 24 है, वो भी 24 है, अगर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 48 ओम हो जाएगा। अगर सीरीज में, ये बात भी क्लियर है। अभी देखिए क्या, फिर ओम्स लॉ लगाएंगे तो 220 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं, अभी मैं 24 की जगह 48 कर दूं, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर जो रेजिस्टेंस यहां मैं लिख देता हूं इन सीरीज IS लिख देता हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या मैंने लिखा है, I इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाई 48। तो जो मेरा करंट की वैल्यू आएगी, इट विल बिकम एज 4.58 एम्पियर। सो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ गई, IS की वैल्यू आ गई 4.58 एम्पियर। सो ये मेरा स्टूडेंट, ये दिस इज माय सेकंड आंसर। ये सेकंड है, ये मेरा फर्स्ट आंसर है। क्लियर है? फर्स्ट आंसर है और मेरा सेकंड आंसर आ गया स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर मेरा आया है। अभी मेरे को देखना है कि थर्ड आंसर के लिए मेरे को क्या करना है। फॉर कैलकुलेटिंग द थर्ड आंसर, कैलकुलेट द करंट व्हेन द 2 कॉइल्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट्स? अभी देखिए, अगर सीरीज में थी तो R प्लस R मैंने कितना ले लिया था, 24 ओम था। अगर पैरेलल में है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 1/24 1/24 इनको पैरेलल में मैंने कर दिया। फार्मूला तो ये लगता है 24 एलसीएम 1 + 1, सो क्या आ गया 2/24 करेंगे 24/2 एंड इट विल बी 12 ओम। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, मेरे पास आ गई है 12 ओम। अभी मैं क्या करूंगा, फिर वही सेम फार्मूला लगाएंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं आई पैरेलल 220 डिवाइडेड बाय 12। तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो माय वैल्यू विल बी 18.34 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो मेरे पास जो तीनों आंसर आ गए, पहला आंसर मेरे पास क्या आया था स्टूडेंट्स, फर्स्ट आंसर विच आई हैव ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इट इज गिवन, और हमारे पास रेजिस्टेंस दिया था 24 ओम, और क्या था कि ईच रेजिस्टेंस 24 है, 2 रेजिस्टेंस दिए थे। पहला मैंने निकाला कि अगर व्हेन ईच रेजिस्टेंस दे आर कनेक्टेड, तो उसके केस में आ रहा मेरे पास 9.17 एम्पियर, सिंपली ओम्स का लगाकर। फिर अगर सीरीज में है स्टूडेंट्स, तो सीरीज में 2 रेजिस्टेंस है, R प्लस कितना 24 और 24 कितना आ जाएगा, वो टोटल आ जाएगा 48 हो जाएगा। उससे मैंने I2 की वैल्यू जो IS टोटल द रेजिस्टेंस टोटल वैल्यू ऑफ करंट व्हेन दे आर कनेक्टेड, 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस समय 4.58 है। और जब पैरेलल में थे स्टूडेंट, तो पैरेलल में 1/24 + 1/24, जब ये मैंने फार्मूला यूज किया तो 12 ओम आ गया पैरेलल में रेजिस्टेंस, उससे मैंने करंट की वैल्यू निकाली, इट इज 18.34 एम्पियर। एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ electric current. So student, my all the 3 answers are obtained. First answer 9.17 ampere, that is the I current है E, ठीक है। और उसके बाद में when series में क्या आ गया, it is 4.58 ampere, और थर्ड केस में when they are connected in parallel, that time my answer is the value of current is 18.34 amperes. So all the 3 answers are obtained. This is the solutions of question number 13 of your NCERT. Please note down. Please note down, student. Then further we will go for question number 14. Please note down. Note करिए students. All the questions are very very important itself. अपने आप में हर questions important है।
क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कि आप देखिएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से दिया होता है एग्जाम में और हमको कैसे उसको सॉल्व करना है, कि हर स्टेटमेंट को हमको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमको क्या क्या वैल्यूज दी हुई है और क्या क्या फार्मूला हमारा यूज होगा, सो दैट अल्टीमेटली मेन एम क्या है कि हमारे को रिजल्ट पे पहुंचना, कि हाउ टू ऑब्टेन द गिवन, जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि टू कैलकुलेट द डैश डैश। इसमें पूछा गया था करंट की वैल्यू निकालिएगा, तो हमने तीनों वैल्यू करंट की निकाल दी है। क्वेश्चन में देखना है कि क्या पूछा गया है। उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जिन जिन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी वो सारे फार्मूले स्टूडेंट्स आपको लर्न करने हैं और सारे फार्मूलों का किसी ना किसी रूप में यूज तो होता है। आपने देखा है मैंने कितने सारे क्वेश्चन, शायद स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस लेसन का। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर लेसन, आपके लेसन का हर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करके उसका बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करके दिखा दिए और समझाए भी हैं, और इस समय स्टूडेंट आप उसको खुद भी आप प्रैक्टिस करना। एंड डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में आपका वो क्वेश्चन ठीक ना हो, सो दैट अल्टीमेटली मेन मोटो इज दैट यू शुड ऑब्टेन वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। जैसी क्वेश्चन आए, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो एनटीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, जैसी न्यूमेरिकल आए इमीडिएटली आपको ऐसा लगना चाहिए न्यूमेरिकल में तो कुछ है ही नहीं, इसको तो इमीडिएटली इट इज वेरी इजी एंड आई कैन सॉल्व इट। ठीक है, आप नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन। हरी अप स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से नोट करिएगा, प्लीज नोट डाउन। You are noted down, student? Right. Yes, students. Now, yes, students. Now we'll solve the question number 14 of your NCERT. Question number 14. Okay. Okay, student, please. How to solve these questions? मैं statement पढ़ रहा हूँ, students. Please carefully देखिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। मैं स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं। नाउ इट इज गिवन एज अ कंपेयर द पावर यूज इन द 2 ohm resistors in each of the following circuit. 6 volt battery in the series with the 1 and 2 ohm. मैं जल्दी से देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 सर्किट बनाने पड़ेंगे। एक एक क्या दिया हुआ है, 1 ohm दिया है और ये कितना दिया है, 2 ohm है, और इसके जो बैटरी दी हुई है यहाँ पे प्लस है माइनस है, और बस ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने बना दिया है, सिंपल सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे 1 ohm और 2 ohm है। ये जो बैटरी दी हुई थी स्टूडेंट 6 वोल्ट की है, और फर्स्ट केस में क्या करना है कि 6 वोल्ट बैटरी इन द सीरीज 1 and 2 ohm रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। सेकंड है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद द, मैं सेकंड डायग्राम भी यहाँ पे बना रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कि दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कितना 12 है और 2 है, ये 12 है तो ये 2 ohm है, और यहाँ पे कितने से, ये 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपली सर्किट बनाया मैंने। ठीक है, पहले सर्किट बना लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या पूछा गया अभी स्टूडेंट, फर्स्ट केस में क्या है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ था, 6 वोल्ट दिया हुआ था, 2 रेजिस्टेंस दिए 1 ohm और 2 ohm, सीरीज में जो रेजिस्टेंस बन जाएगा कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ohm। क्लियर है। अभी V की वैल्यू कितनी है, 6 है, R की वैल्यू 3 है, I की वैल्यू निकाल सकते हैं। I की वैल्यू क्या है, इट इज अ V डिवाइडेड बाई R, सो कितना आ जाएगा 6 / 3,
इट इज अ 2 एम्पियर। तो मेरी आई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। क्लियर है, आई की वैल्यू मेरी आ गई 2 एम्पियर फर्स्ट केस में। क्लियर है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ इन द नेक्स्ट, अभी मैं बात करता हूं पावर की बात करता हूं। अगर पावर की बात करते हैं, फार्मूला हमने निकाला, यूज किया था, P इज इक्वल टू, मैंने बताया थे तीनों फार्मूले थे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अभी मैं यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ ताकि पावर फर्स्ट केस में, क्योंकि कंपैरिजन है ना पावर्स के बारे में। नाउ P1 है आई स्क्वायर आर। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो उसने कहा था कि 2 ओम रेजिस्टेंस कितना लेना था, 2 ओम, आई की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 2, तो पावर कितनी आ गई, 8 वाट। अभी मेरे पास जो P1 की वैल्यू आई है स्टूडेंट, यहाँ पे P1 की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ 8 वाट। इज इट क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? फर्स्ट केस में P1 की वैल्यू 8 वाट। सेकंड केस में देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस है 12 ओम, जो है 12 ओम और 2 ओम है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे जब 12 और 2 पैरेलल में है तो टोटल कितना रेजिस्टेंस बन जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं। 12 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7 बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 7 इज इक्वल टू 12 बाई 7। अगर तो स्टूडेंट क्या है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास V की वैल्यू यहाँ पे सिंपल बनाते हैं इसको, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या V की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, कितनी थी, 4 वोल्ट, ठीक है। और सिंपली वो कह रहा है कि जो 2 वोल्ट है, जो सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो R की वैल्यू कितनी है, 2 ओम है। फार्मूला लगाएंगे हम P2 निकालने के लिए, V स्क्वायर बाई R का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। अभी V की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 4 है, तो मैं 4 का स्क्वायर कर लिख सकता हूं, और R की वैल्यू कितनी है, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ही क्लियर है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी 18 वाट। तो P2 की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, इट हैज कम टू 8 वाट। P1 की वैल्यू भी मेरे पास आई है 8 वाट, और P2 की वैल्यू भी मेरे पास आई है 8 वाट। अब तो करना क्या था, मेरे को कंपैरिजन करना है। P1 8 वाट आई है, नाउ इट इज इक्वल टू 1, तो हेंस आई कैन से देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2। तो ये स्टूडेंट्स मेरा कंपैरिजन था कि हाउ टू जो कैलकुलेट दी, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। योर क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स दिया क्या, जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या था उसमें मैं पढ़ रहा हूं दोबारा से स्टेटमेंट, और हमने सॉल्व कैसे किया है। कंपेयर दी पावर, देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है हमको पावर कंपेयर करना है था, यानी कि इस फर्स्ट केस में पावर कितनी है और सेकंड केस में। तो पावर के मैंने 3 फार्मूले बताए थे स्टूडेंट आपको, P इज इक्वल टू V इंटू आई, सेकेंड P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, थर्ड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। अब आपको देखना है स्टूडेंट, obtaining the value of power, how these 3 formulas they can be used। ठीक है स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया। सिंपली करना क्या है, पहले केस में 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 1 प्लस 2 कर लीजिएगा, और उससे आप टोटल आई की वैल्यू आप निकाल दी, पहले आपने वैल्यू निकाल दी है आई की 2 एम्पियर निकाली, और फार्मूला यूज किया हुआ है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। फार्मूला यूज करके आपने P1 की वैल्यू निकाली है 8 वाट। सेकंड केस में वो कह रहा है कि जब 2 रेजिस्टेंस से पैरेलल में हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, ये 4 था और ये 2 है, 4 है 2 है। फार्मूला यूज किया मैंने V स्क्वायर बाई आर, V की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 8 वाट। तो P1 डिवाइडेड बाई P2 कंपेयर करना है, रेशियो है, वो भी 8 वाट है, ये भी 8 वाट है, कैंसिल हो गए, 1 आ गया। सो इट मींस P1 एंड P2 इज